हर विवाह दो वेदियों के ऊपर खड़ा होता है। The first, either your marriage will be the altar of Yahweh, या तो वो याहुवे का वेदी होगा, where it will be covenant, priesthood, purpose. वहां पर वाचा होगी, याजकीयता होगी और उद्देश्य होगा। Hallelujah. Either it will be that altar, या तो ये वाला वेदी होगा, otherwise it will be the altar of Baal. या तो फिर वो बाल की वेदी होगी। There, either it will be lust, in that it will be lust, bloodline manipulation, spiritual traps. वहां पे लत, वासना, पीढ़ीगत छेड़छाड़ और आत्मिक जाल होगा। So either your marriage is Yahweh's altar or it is the altar of Baal. तो आपका विवाह या तो याहुवे का वेदी हो सकता है या फिर बाल की वेदी हो सकती See, Malachi 2:13-14 says like this. है। और मलाकी 2:13-14 इस प्रकार से The कहते हैं, Lord is the witness between you and the wife of your youth. यहोवा तेरे और तेरी जवानी के पत्नी के बीच साक्षी है। So God is not just watching your marriage, परमेश्वर सिर्फ आपके विवाह को देख नहीं He रहा is है, witnessing your altar. वो आपकी वेदी का साक्षी बना है। So God is very clearly watching तो परमेश्वर बड़े ध्यान से देख रहा है, that is God being given priority in your marriage. वो देख रहा है कि क्या परमेश्वर को प्राथमिक स्थान दिया जा रहा है आपके If a विवाह में। husband and a wife come together and give importance to God, अगर एक पति और एक पत्नी एक होकर परमेश्वर को प्रथम स्थान देते it हैं, becomes an altar of Yahweh. तो वो विवाह याहुवे की वेदी बन जाती है। So ask yourself, what kind of altar are you having today? अब आप अपने आप से सवाल पूछिए कि आपने कैसी वेदी बना रखी है अपने विवाह में। Your altar will define what kind of blessings is going to come into your marriage. और आपकी इसी वेदी पे निर्भर करेगा कि आपके विवाह में किस तरीके की आशीषें आनी चाहिए। The next revelation is अगला रेवलेशन है the war of the two seeds. दो सीड्स का, The war of the two seeds. दो बीजों का युद्ध। Genesis 3:15 says, उत्पत्ति 3:15 कहता है, listen to me, I will put enmity between your seed and her seed. मैं तेरे वंश और उसके वंश के बीच बैर उत्पन्न करूंगा। Hallelujah. Now this, who said this? God himself. किसने कहा यह? परमेश्वर ने स्वयं कहा। The war that you are having in your house didn't start in your house. जो लड़ाइयाँ, युद्धें आपके घर के अंदर शुरू हुई, आपको लग रहा है शुरू हुई है, वो वहां से नहीं शुरू हुई। You are unnecessarily fighting at your home. आप फालतू में ही अपने घर में लड़ाइयाँ कर रहे हो Unnecessary emotional trauma is going on in your home. और बिना मतलब के आप एक दूसरे को भावनात्मक रूप में घात किए जा रहे हो, दर्द दिए जा रहे Your हो। war did not start at home. आपकी लड़ाइयाँ, आपके झगड़े घर से नहीं शुरू हुए It हैं। started in the Garden of Eden. वो आदम वाटिका से ही शुरू हो चुके थे। The serpent is attacking your marriage. और वो सांप जो है आपके विवाह पे हमला कर रहा है, क्योंकि the womb of the woman is a throne for the next move of God. क्योंकि एक स्त्री का गर्भ परमेश्वर की अगली चाल के लिए सिंहासन है। He very clearly knows out of womb will come somebody who will become a throne and the next move of God can happen through him. और her. उसको पता है कि एक स्त्री के गर्भ से एक अगला पीढ़ी उत्पन्न होगा, एक ऐसा पीढ़ी उत्पन्न होगा जिसके द्वारा परमेश्वर का योजना सफल हो सकता है। He also knows the seed of a godly man is the carrier of divine government. और उसको ये भी पता है कि एक धर्मी पुरुष का बीज स्वर्गीय शासन का वाहक है। So if Satan can prevent the union, अगर शैतान इसी जोड़े को या इसी एकपन को तोड़ दे, he can corrupt the seed. तो फिर वो बीज को ही नाश कर सकता है। Let me end it up like this and I'll be talking about this in the coming days. और आने वाले दिनों में इस विषय में और भी आपको गहराई से सिखाऊंगा। Every family that fights, हर परिवार जो झगड़े करते हैं, every husband and wife that fights, हर एक पति पत्नी जो लड़ाई करते हैं आपस में, that is the gravest thing you could do to your children. वो सबसे बड़ी गलती है जो आप अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं। You know, there is nothing more worse that you can do to your child. इससे बुरा अभिशाप और कोई नहीं आपके बच्चों के लिए, आपके बच्चे के लिए। You know, because
yes. because your children are getting affected. क्योंकि आपके बच्चे इसमें सबसे ज्यादा सहते हैं। They would be called to do something great. उनके जीवन की बुलाहट तो बहुत बड़ी बड़ी होगी, But parents sometimes do not realize that. लेकिन माता पिता इस बात को समझते नहीं। I know numerous families मैं ऐसे बहुत परिवारों को जानता हूँ that fight in front of or shout, scream, curse in front of their children. जो अपने ही बच्चों के सामने लड़ते हैं, झगड़ते हैं, गालियाँ बोलते हैं और एक दूसरे का अपमान करते हैं। I sometimes think, how can a husband have alcohol and come to his home when he knows a little child is there at home? मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि एक मर्द, एक आदमी ऐसा कैसा हो सकता है कि शराब के नशे में अपने घर के अंदर प्रवेश करे जहाँ पे उसके छोटे बच्चे हों, एक छोटा बच्चा हो। You know, I've seen families where parents abuse in the family. और मैंने ऐसे परिवार देखे हैं जहाँ पे घर के अंदर बड़े गाली गलौज करते हैं Oh, there are fighting, literally, you know, hitting each other. और ऐसी लड़ाइयाँ हो रही हैं जहाँ पे हाथापाई होती है, एक दूसरे को मारते पीटते हैं। Are you going through it? क्या आप ऐसे मंजर से गुजर रहे हैं? Have you gone through it? क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? Have your parents gone through it? क्या आपके माता पिता के साथ ऐसा हुआ Were है? you once such child? क्या आपका बचपन ऐसा गुजरा है? Hallelujah. Pray that God may break it in the name of Jesus tonight. आप प्रार्थना कीजिए कि यीशु के नाम से ये दुर्व्यवहार और ये अब्यूज आपके जीवन से टूट जाए। Hallelujah. Because once this is broken, people of God, क्योंकि एक बार अगर ये टूट जाए, you know, the kind of freedom that will come into your family, the joy that will come in your family would be amazing. आपके परिवारों के अंदर जो स्वतंत्रता आप महसूस करने पाएंगे, जो आनंद आप महसूस करने पाएंगे, वो बहुत ही ज़्यादा अलौकिक I know होगा। so many people who come from a broken family. मैं इतने लोगों को जानता हूँ जो एक टूटे परिवार के अंदर से बाहर निकले। And the funny part is those parents still trying to justify and trying to prove that they are right, and then किसी और को भी वो टिप्पणी दे रहे हैं अच्छी मैरिज कैसे होती है। वो सब देख के मुझे ज़्यादा हंसी आती है कि आप योग्य ही नहीं हो कुछ और बोलने के लिए, क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी नहीं खराब की, आपने खराब की है उस बच्चे की ज़िंदगी जिसको खुदावंद ने आपको गिफ्ट के रूप में दिया था। तो आपने तो उसका मर्डर कर दिया, आपने तो उसको खराब कर दिया, आपने उसका शोषण कर दिया। क्योंकि अगर आप अपनी पूरी ज़िंदगी में एक आध दो बच्चों को अगर सही नहीं बना सकते और उन्हें सही नहीं कर सकते, है ना, अपने ईगो और अपनी लड़ाई और अपने इंटीमेसी और अपने फालतू चीज़ों की वजह से, तो इससे ज़्यादा है ही क्या हमारे पास, है ना। This is what God has called us for, and let it be broken today in every Christian family, you know, where we are going through this. And I will end it up, you know, I shared this story a couple of weeks ago about Pastor Jensen Franklin. और मैंने ये कहानी कुछ ही दिन पहले जेनसन फ्रैंकलिन जो प्रभु के दास हैं उनके विषय में मैंने बांटी थी। And there is another preacher that I often refer to, and that is Dr. Billy Graham. और एक और प्रभु के दास है जिनके बारे में मैं हमेशा बोलता हूँ, वो है पास्टर बिली ग्रैहम। In the book Rebel with the Cause, और एक किताब है जिसमें लिखा जिसका नाम है रिबेल विद द कॉज, written by Franklin Graham. और जो फ्रैंकलिन ग्राहम के द्वारा लिखी गई है। In that book, he says that, you know, how he was against his father and against the ministry, or you know, he was a reckless child. और उस प्रकार से वो लिखते हैं कि वो किस तरीके से अपने पिता के खिलाफ थे और उनकी सेवकाई के खिलाफ थे, और वो कैसे एकदम ही एकदम ही बिगड़े हुए या बिल्कुल फैले हुए एक बच्चे थे। Imagine I'm talking about a man of God that has preached to millions and billions of people. और आप ध्यान रखिएगा, मैं उस बेटे की किताब के बारे में कह रहा हूँ जिसके पिता ने लाखों सैकड़ों करोड़ों लोगों तक सुसमाचार पहुंचाया और प्रचार किया है। I have got the autobiography of Billy Graham, and I have read it multiple times. और मेरे पास बिली ग्राहम जी का जो किताब है जो उन्होंने खुद लिखा है, वो ऑटोबायोग्राफी जो है वो मेरे पास है और मैंने बहुत बार उसे पढ़ा है। And he said that, you know, me and Ruth Bell Graham would constantly pray and show love and pray and show love and pray and show love and pray and show love, and eventually all the children
their lives were transformed because of the love that was there among Billy Graham and his wife. और इस प्रकार से वो अपनी किताब में लिखते हैं कि उनके बेटे के लिए वो निरंतर अपनी पत्नी रूथ ग्राहम के साथ वो निरंतर प्रार्थना करते और प्रेम दिखाते, प्रार्थना करते और प्रेम दिखाते। जब भी बच्चा अलग रास्ते पे जाता, बिगड़ता, जो भी करता, वो और प्रार्थना करते और उसके लिए प्रेम दिखाते। और हुआ ये कि अंत में उनके सभी बच्चे परमेश्वर में स्थिर भी हो गए, सेवकाई के एक बहुत ही मेजर भाग बन गए। So tonight, people of God, I would tell you that Jensen Franklin, as he prayed, and it was the relationship between Pastor Jensen and his wife, because of which, you know, the daughter that was led astray came back because she saw so much love among the parents. और इस प्रकार से जेनसन फ्रैंकलिन की कहानी ये है कि उनकी बेटी भटक गई थी, दूर चली गई थी, लेकिन वो बेटी वापस सिर्फ इस वजह से आई क्योंकि उनके माता पिता के बीच में इतना ज़्यादा प्रेम था। वो प्रेम उसको कहीं और नज़र नहीं आया, लेकिन अपने माता पिता के रिश्ते में उसे दिखा और वो घर लौट आई। One of the preaching, she said like this. और एक प्रचार में इस प्रकार से उसने कहा, I did not have to go far away to find love. मुझे कहीं ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ा प्यार को ढूंढने के लिए। It was right there in the next bedroom. और वो मेरे बगल वाले बेडरूम के अंदर ही It was था। there in my kitchen. वो मेरे किचन में था It was there in our living room. और वो हमारे लिविंग रूम में था। It creates an impact. और ये बहुत बहुत फर्क लाता है प्रियो। So tomorrow we will go more deeper. कल हम और गहराई से सीखेंगे Hallelujah. That how these things affects the next generation. कि कैसे ये सारी बातें अगले पीढ़ी के ऊपर एक प्रभाव को लेकर आती हैं। But tonight we're going to pray. लेकिन अब हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। You have listened to the word of God. आपने वचन सुना है, We have already prayed for the prayer request. हमने ऑलरेडी प्रार्थना विषयों के लिए प्रार्थना किया We're है। going to pray for all families today. आज हम सभी परिवारों के लिए प्रार्थना What करने जा रहे kind हैं। of spiritual battles are we going through? किस प्रकार के आत्मिक युद्धों से आप गुजर रहे हैं? You know, you could be a wife or a husband. आप हो सकता है एक पत्नी हो या पति हो। You want it to be fixed, God will fix it. आप चाहते हैं अगर आपका विवाह ठीक हो जाए और उसको परमेश्वर मरम्मत कर दे तो ऐसा ही होगा। You could be a child. हो सकता है आप एक बच्चे हैं, You could be a single man and a single woman. हो सकता है आप एक अविवाहित पुरुष या औरत हैं, Or you could be a son or a man, हो a son or a daughter, सकता है आप एक बेटा हैं या एक बेटी हैं you know, who is seeing challenges in their father and mother's life. जो ऐसी चुनौतियों को, ऐसी चीज़ों को देख रहा है अपने माता पिता के जीवन में। You could be a single person who might be under the influence of a Delilah. और हो सकता है कि आप एक अविवाहित व्यक्ति हैं जो किसी दलाइला के साथ फंसे हुए हैं। You could be a woman who might be going through a season of Laban. और हो सकता है आप एक लड़की हैं जो एक लाबान के उस समय काल से गुजर रही हैं। Tonight, let it be broken. आज रात को वो टूट जाए, Let it be broken. टूट जाए। Are you ready to pray with me? क्या आप हमारे साथ प्रार्थना Can I करेंगे? ask you to kneel down? क्या मैं आपसे If you निवेदन can. कर सकता हूँ कि अगर आप हो सकते तो अपने घुटनों पर आ And जाएं then we are going to pray. और हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। Everything is going to be broken tonight. हर चीज आज टूटने जा रही है। Can you pray for agreement right now? क्या हम सहमति के लिए अभी प्रार्थना करें? Can you pray that all our families may see agreement? क्या हम ये प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारे सभी परिवार सहमति को प्राप्त कर सके? Everything that's breaking agreement, हर चीज जो इस सहमति को तोड़ती है let it be broken tonight. आज वो टूट जाए यीशु के नाम से। Understand it's the devil. समझिए कि ये शैतान है And say to the devil, you have no place in our marriage. और कहिए शैतान से तेरा मेरे विवाह में कोई काम नहीं है। Tell the devil, you have no place in my family. कहिए शैतान को कि है शैतान तेरा कोई काम नहीं है मेरे परिवार के अंदर। Disagreement, you have no authority. असहमति तेरा कोई अधिकार नहीं है। You have no power in my family. तेरे पास कोई सामर्थ्य नहीं है, कोई पावर नहीं है मेरे परिवार के अंदर। Come on, shout and say, get out, devil. Get out, devil. Somebody say it with authority. Get out, devil. कोई तो अधिकार से कहे बाहर निकल Some जाता है। single people say, get out, devil. कोई अविवाहित
Come on, if you are a man and if you have Delilahs in your life, can you say with me next, get out Delilah? Get out Delilah. अगर Say it, get out Delilah. Get out Delilah. I cancel you Delilah. अगर आप एक पुरुष हैं, आप एक लड़का हैं जो दलाइला की आत्मा में फंसे हुए हैं, कि दलाइला आपके जीवन में आ पहुंची है, तो आप मेरे पीछे कहिए, दलाइला हट जा मेरे जीवन से। Amen. Yes, hallelujah. हालेलुया। Pray for intimacy right now. और अब आप प्रार्थना करेंगे नजदीकियों के लिए, Heavenly intimacy in your family. स्वर्गीय नजदीकियां आपके परिवार के अंदर। Come on, father, mother, children, husband, wife, brothers, sisters, intimacy. Come on, pray over it. माता पिता बच्चों के बीच में, पति पत्नी के बीच में, भाई बहनों के बीच में एक नजदीकियां फिर से स्थापित हों। Oh, let the spirit of intimacy. Oh, let God bring intimacy in your family. परमेश्वर आपके परिवारों के अंदर नजदीकियां लेकर आए। Jesus. Everything that breaks intimacy, we break it in the name of Jesus, our Father. हर एक चीज जो इन नजदीकियों को तोड़ती है, हम यीशु के नाम से उसे तोड़ते हैं। Hallelujah. Now say behind me. अब मेरे पीछे कहें। I'll say it in English, then I'll say it in Hindi. In the name of Jesus. In the name of Jesus. What is coming out of me What is coming out of me is a divine government. is a divine government. Nothing Nothing can break it, can break it, and my generations and my generation will be a season will be a season of blessing, of blessing, not only to me, not only to me, but to nations. but to nations. यीशु मसीह के नाम से यीशु मसीह के नाम से मेरे अंदर से मेरे अंदर से निकलने वाले निकलने वाले हर एक बीज हर एक बीज आशीषित होने जा रहे हैं आशीषित होने जा रहे हैं, और और वह वह अद्भुत अद्भुत गवर्नमेंट्स बनने जा रहे हैं। गवर्नमेंट्स बनने जा रहे हैं। इसके खिलाफ इसके खिलाफ खड़े हुए खड़े हुए हर एक शैतानी ताकत शैतानी ताकत आज आज खत्म हो जाए। खत्म हो जाए। मेरे घर में मेरे घर में हर एक आनंद को हटाने वाले, हटाने वाले, एकता को हटाने वाले, प्यार को हटाने वाले, अग्रीमेंट को हटाने वाले, सब दुष्ट की विचार, मैनिपुलेशन, कम्युनिकेशन अभी इसी वक्त मेरे घर से, मेरे परिवार से मैं आज्ञा देता हूँ, निकल जा, निकल जा, निकल जा। आज से अभी से मेरे परिवार में इंटीमेसी होगा। In Jesus' name. Somebody say amen. Somebody say amen. Somebody say amen. Thank you, people of God. धन्यवाद प्रभु के लोगों।